حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم، BBN خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبرنامہ کی شروعات میں ہیڈ لائنز۔ سرکاری دستاویزات درست رکھیں، SIR کے لیے کریں پیشگی تیاری۔ شاہی مسجد باغ عامہ کے امام و خطیب مولانا احسن الحمومی کی عوام سے اپیل، کہا SIR عمل میں غفلت کے سنگین نتائج۔ یونیورسٹی کی 50 ایکڑ اراضی پر قبضے کے خلاف مانو کے طلبہ کے احتجاج کو ملا عثمانیہ یونیورسٹی طلبہ کا ساتھ۔ وزیر اظہر الدین نے کہا یونیورسٹی کی اراضی واپس لینے کا کوئی ارادہ نہیں۔ تلنگانہ میں نئی گاڑیوں کے رجسٹریشن کے لیے سہولت، اب RTA دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ڈیلرز کے ذریعے ہو جائے گا رجسٹریشن کا عمل مکمل۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں 23ویں انڈیا کانفرنس ماہ فروری میں انعقاد، سابق ریاستی وزیر و BRS لیڈر KT راما راؤ کو خطاب کی دعوت۔ سٹی پولیس کی عوام کے لیے نئی پہل، سائبر دھوکے کی شکایت گھر بیٹھے درج کروا سکتے ہیں۔ سی مترا پلیٹ فارم کا کمشنر پولیس نے کیا آغاز۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حیدرآباد کی شاہی مسجد باغ عامہ میں خطاب کرتے ہوئے امام و خطیب مولانا حافظ ڈاکٹر احسن بن محمد الحمومی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ اسپیشل انٹینسیو ریویژن SIR کے عمل پہ بھرپور تعاون کریں اور اپنے تمام سرکاری دستاویزات کو بروقت درست کر لیں، کیونکہ تلنگانہ میں بھی عنقریب SIR کا آغاز ہونے والا ہے اور دیگر ریاستوں میں اس عمل کے دوران لاکھوں افراد کے نام ووٹر لسٹوں سے خارج کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی ممکنہ پریشانی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ متعلقہ BLOs کے دورے کی تاریخ و وقت سے باخبر رہا جائے۔ فارم میں درج تفصیلات خصوصاً ناموں کے ہجوم کو بغور جانچ جائے اور بیرون ملک مقیم رشتہ داروں کے ناموں کے اندراج میں بھی مدد کی جائے۔ اپنے خطاب میں مولانا احسن الحمومی نے سال نو کے موقع پر مسلمانوں کے لیے 4 نکاتی لاہ عمل پیش کرتے ہوئے ایمان کی مضبوطی، اللہ پر کامل یقین، 5 وقتیہ نمازوں کی پابندی اور قرآن مجید سے گہرا تعلق قائم کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پختہ ایمان انسان کو ذہنی و روحانی سکون عطا کرتا ہے، کردار کو مضبوط بناتا ہے اور گناہوں سے بچنے میں مدد دیتا ہے، جبکہ نماز صبر، حوصلہ اور تقوی پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے تلقین کی کہ روزانہ کم از کم 1 رکوع قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ یہی حقیقی کامیابی اور دنیا و آخرت کی فلاح کا راستہ ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے طلبہ سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے عثمانیہ یونیورسٹی کے طلبہ نے OU آرٹس کالج کے احاطے میں ایک مضبوط اور منظم احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر طلبہ نے الزام لگایا کہ کانگریس حکومت ایک سازش کے تحت اردو یونیورسٹی سے وابستہ 50 ایکڑ قیمتی اراضی کو غیر قانونی طور پر ہتھیانے کی کوشش کر رہی ہے، جو تعلیمی اداروں کے حقوق پر براہ راست حملہ ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اردو یونیورسٹی صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ اردو زبان، تہذیب اور اقلیتی تعلیم کی شناخت ہے اور اس کی زمین پر قبضے کی کوئی بھی کوشش ناقابل قبول ہے۔ طلبہ نے حکومت کو سخت انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ فوری طور پر مجوزہ بھو اسکرین کا عمل روکا جائے، بصورت دیگر عثمانیہ یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے ریاست گیر سطح پر احتجاج تحریک شروع کی جائے گی، جس کی مکمل ذمہ داری حکومت پر عائد ہوگی۔ ریاستی وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہر الدین نے واضح کیا کہ ریاستی حکومت مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی 50 ایکڑ اراضی واپس حاصل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔
उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ गोशों से इस ताल्लुक से गुमराह कुन प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। इस तरह के दावों में कोई सच्चाई नहीं है। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि कई गोशों से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की अराजी वापस लिए जाने के ताल्लुक से दावे किए जा रहे हैं, जबकि इनमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि वो ये वाजे कर देना चाहते हैं कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत इस अराजी को वापस लेने का कोई इरादा नहीं रखती और जो इत्तलात फैलाई जा रही हैं इनमें किसी तरह की सच्चाई नहीं है। वाज़ेह है कि इस ताल्लुक से मानू के तलबा ने भी एहतजाज शुरू किया था और इनका दावा था कि हुकूमत ने अराजी वापस लेने के लिए नोटिसें भी जारी कर दी हैं। ताहम अब वजीर अखिलियती बहबूद ने यह वाज़ेह कर दिया है कि हुकूमत का अराजी वापस लेने का कोई मंसूबा या इरादा नहीं है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को चाहिए कि वो अपनी तनाज़ात को हल कर ले और मसाइल को तूल ना दे। चीफ मिनिस्टर ने महेश्वरम मेडी सुजैन में के रीफ्लोड प्लांट के इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए कहा कि तेलुगु रियासतों को अवामी मसाइल को हल करने पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सियासत पर किसानों के मसाइल को हल करने को तरजीह दी जानी चाहिए। रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू से भी अपील की है कि वो तेलंगाना के अपाची प्रोजेक्ट्स की तामीर में रुकावट पैदा ना करें। उन्होंने कहा कि अपाची प्रोजेक्ट्स मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में मंजूर किए गए हैं। इनकी तामीर में ताखिर के नतीजे में मरकजी हुकूमत से फंड्स हासिल करने में मसाइल पैदा हो रहे हैं। दोनों रियासतों को चाहिए कि वो आपसी तौर पर तनाज़ात को हल करें और खैर सगाली की फिजा में काम करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना अपनी जानिब से इस मामले में हर मुमकिन ताउन करने तैयार है। పక్క రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, కృష్ణా నదిలో ఉన్న మా పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతలు కావచ్చు, మా కల్వకుర్తి లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ కావచ్చు, మా డిండి ప్రాజెక్టు కావచ్చు, మా ఎస్ఎల్బిసి భీమా నెట్టంపాడు ప్రాజెక్టులు కావచ్చు, ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోనే మంజూరైన ప్రాజెక్టులు, వీటి అనుమతులకు మీరు అడ్డంకి పెట్టకండి, వీటి అనుమతులకు మాకు సహకరించండి। ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడే మంజూరైన ఈ ప్రాజెక్టులకు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి అభ్యంతరాలు రావడం వల్ల ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియరెన్సులు కానీ సిడబ్ల్యూసి క్లియరెన్సులు తెచ్చుకోవడంతో మాకు సమస్యగా మారింది। ఇవి రాకపోవడం వల్ల మాకు రావాల్సిన బ్యాంకుల నుంచి రుణాలు కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించాల్సిన సహాయం కానీ యాక్సిలరేటెడ్ ఇరిగేషన్ బెనిఫిషియరీ ప్రోగ్రాంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం 60% నిధులు ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉన్న ప్రాజెక్టులు మాకు రావడం లేదు। దాంతోనే మాకు తీరని ఆర్థిక భారం మా రాష్ట్రం మీద పడుతుంది। ఇవన్నీ కూడా మీరు సహకరించండి। మీకేమైనా సమస్యలు ఉంటే కూడా మేము సానుకూలంగా ఆలోచన చేస్తాం। మేము వివాదం కోరుకోవడం లేదు। నేను మరొక్కసారి ఈ వేదిక మీద నుంచి చెప్పదలుచుకున్నా, నేను శాశ్వత పరిష్కారాన్ని కోరుకుంటున్నా। ఇది రాజకీయ ప్రయోజనం కాదు, ప్రజల ప్రయోజనము, రైతుల ప్రయోజనము, పెట్టుబడిదారుల ప్రయోజనము। तेलंगाना हुकूमत ने रियासती सरकारी मुलाजमीन के लिए एक अहम फलाही इक़दाम उठाते हुए हर मुलाजिम को तकरीबन 1.02 करोड़ की हादिसाती इंश्योरेंस कवरेज फराहम करने का ऐलान किया है, जिसका मकसद हादिसात की सूरत में मुलाजमीन और इनके अहल खाना को माली तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाना है। इस सिलसिले में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बट्टी विक्रमार्का ने बताया कि इस स्कीम के लिए बैंकों के साथ मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है और हुकूमत इसे जल्द नाफिज करने जा रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुलाजमीन को अपना ख़ानदान समझती है और इनकी बहबूद को अव्वलीन तरजीह देती है, जिससे रियासत भर के तकरीबन 5.14 लाख सरकारी मुलाजमीन को फ़ायदा पहुँचाएगा, जबकि पहले से सिंगारेनी और बिजली के महकमों में भी इस नवैयत की बीमा कवरेज दी जा चुकी है। रियासती हुकूमत की जानिब से गाड़ियां खरीदने वालों के लिए राहत पहुंचाने के इक़दाम किए गए हैं और अब नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए RTA दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कहा गया है कि नई गाड़ियां रजिस्ट्रेशन के लिए अब मुसल्लिमा ऑटोमोबाइल डीलर्स के पास ही दरख्वास्त दाखिल करने की सहूलत रहेगी। पहली बार RTA दफ्तर जाने की शर्त को हुकूमत की जानिब से ख़त्म कर दिया गया है। ताहाल मुसल्लिमा ऑटोमोबाइल डीलर्स सिर्फ TR नंबर फराहम करते थे, ताहम अब ऑटोमोबाइल डीलर्स की जानिब से गाड़ियों के मुस्तकिल रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से अहदेदारों को मुतय्यन कर दिया जाएगा जो गाड़ियों को मुकम्मल
तफसीलात हासिल करने के बाद रजिस्ट्रेशन और नंबर की इजराई का फैसला करेंगे। इसके अलावा कहा गया है कि आरसी हासिल करने के लिए भी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी और स्पीड पोस्ट के जरिए गाड़ी मालिक को आरसी रवाना कर दी जाएगी। तेलंगाना में निजामाबाद का नाम तब्दील करने का मामला अब बड़ा सियासी मौजू बन गया है। अब रियासती बीजेपी सदर रामचंद्र राव ने ऐलान किया है कि अगर बीजेपी इख्तिदार में आती तो निजामाबाद का नाम बदलकर इंदौर रखा जाएगा। कौमी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज भी कई मुकामात के नाम निजाम दौर के जबर व नाइंसाफी की याद दिलाते हैं और तारीख की इस्लाह के लिए ऐसे नामों का जायजा लेना जरूरी है। रामचंद्र राव ने वाजे किया कि बीजेपी इस फैसले पर मजबूती से कायम है और ये कदम अवामी जज्बात और तारीखी दुरुस्तगी के मुताबिक है। इससे कबल बीजेपी रुकने पार्लियामेंट धर्मापुरी अरविंद ने इस बहस को हवा देते हुए दावा किया था कि निजामाबाद नाम इलाके के लिए बदकिस्मती की अलामत बन गया है और इसी नाम के बायस सनतें और कंपनियां बंद हुई। इनके मुताबिक तरक्की के लिए जिले को नई शनाख्त देना नागुज़ीर है। बीआरएस के सीनियर लीडर व साबिक रियासती वजीर केटी रामाराव को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में 23वीं इंडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब के लिए मदऊ किया गया है। ये कॉन्फ्रेंस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 14 और 15 फरवरी को मुनाक़द होने वाली है। तेलंगाना को टेक्नोलॉजी के हब के तौर पर आलमी सतह पर उजागर करने में केटीआर के रोल पर इन्हें इस कॉन्फ्रेंस से खिताब के लिए मदऊ किया गया है। ये कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान की मुख्तलिफ शोबेजात में तरक्की को उजागर करने के लिए मुनाक़द की जा रही है। ये तलबा की क़ियादत को भी उजागर करती है और अमेरिका में इसकी बहुत अहमियत समझी जाती है। इसमें तलबा, माहिरीन तालीम, बिजनेस लीडर्स, पॉलिसी साज और सकाफती गोशों को यकजा किया जाता है। इस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान और जनूबी एशियाई ममालिक के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस से पहले नीता अंबानी, नितिन गडकरी, जयराम रमेश और अजीम प्रेम जी जैसी शख्सियतें खिताब कर चुकी हैं। संक्रांति त्योहार के सिलसिले में पड़ोसी अजला और रियासतों के अवाम अपने अपने आबाई मुकामात को रवाना होने लगे हैं, जिसकी वजह से शहर के अतराफ हाईवेज पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई है। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ बस स्टेशनों पर भी अवाम का हजूम देखा जा रहा है। संक्रांति त्योहार मनाने के लिए लोग आंध्र प्रदेश के अलावा दूसरे अजला को भी रवाना हो रहे हैं। हैदराबाद विजयवाड़ा हाईवे पर गाड़ियों का हजूम है और इसके नतीजे में ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हो गई है। गाड़ियां बहुत सुस्त रफ्तार से रवाना हो रही हैं। इस तरह शहर के मुख्तलिफ बस स्टेशनों पर भी बस में सफर करने के लिए मुसाफिरीन का काफी हजूम देखा जा रहा है। बस स्टेशनों पर इजाफी हजूम को देखते हुए आरटीसी की जानिब से मौसर इंतजाम किए गए हैं। ताहम हजूम बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। शाहराहों पर भी गाड़ियों की तवील कतारें देखी जा रही हैं और इनकी रफ्तार बहुत सुस्त दिखाई दे रही है। आरटीसी की जानिब से रिटर्न टिकट के साथ सफर करने पर अवाम के लिए डिस्काउंट भी ऐलान किया गया है ताकि लोग संक्रांति त्योहार के मौके पर आरटीसी बसों से सफर करें। हैदराबाद सिटी पुलिस ने आवाम की सहूलत के लिए एक नई पहल की है और सी मित्रा प्लेटफॉर्म का आगाज किया है। अब इसके जरिए अवाम साइबर क्राइम से मुतालिक FIR घर बैठे ही दर्ज करवा सकते हैं। इस तरह की पहल मुल्क में अपनी नवयत की मुनफरिद पहल है। सी मित्रा नामी प्रोग्राम का सिटी पुलिस की जानिब से आगाज किया गया है, जो ऑनलाइन डेस्क है। इस डेस्क के जरिए साइबर धोखेधड़ी का शिकार होने वाले अफराद पुलिस स्टेशन गए बगैर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सी मित्रा के आगाज के मौके पर कमिश्नर पुलिस मिस्टर VC सज्जान ने कहा कि सी मित्रा की शुरुआत का असल मकसद धोखाधड़ी है से परेशान अवाम को फौरी राहत पहुंचाना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए डिजिटल जुराइम और
ओटीपी, धोखा, डिजिटल गिरफ्तारी, सरमाकारी और तिजारती स्कैम्स की शिकायत दर्ज करवाई जा सकती हैं। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अब आम आदमी की रसाई तक पुलिस खिदमत को पहुंचाया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि इस सहूलत से आम आदमी को फौरी अपनी शिकायत दर्ज करवाने में मदद मिलेगी। దేశంలోనే ఇది ఒక ఫస్ట్ ఇనిషియేటివ్. సైబర్ క్రైమ్ నేరస్తులు ఎవరు ఉన్నారు, వాళ్ళు నేరం అయిన తర్వాత బాధితులకి అండగా ఉండడానికి హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ కమిషనరేట్ ఒక కొత్త వినూతన సిస్టమ్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఎందుకంటే రోజుకి సైబర్ క్రైమ్ పెరుగుతుంది. బట్ మనము అది కాకుండా కొత్త ఎమోస్ తో కూడా రావడం జరుగుతుంది. మనము లో ఉన్న ఒక ఆశని, దురాశని మరియు మన ఒక భయాన్ని ఒక అడ్డం పెట్టుకొని సైబర్ క్రైమ్ నేరస్తులు ఈ ఒక క్రైమ్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు. మనము పొద్దున్న లేస్తేనే మీ ద్వారా మనం చూస్తూనే ఉంటాను. ఓటీపీ ఫ్రాడ్స్ అంటారు, ట్రేడింగ్ ఫ్రాడ్స్ అంటారు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రాడ్స్ అంటారు, గోల్డ్ పేరుతోని ఫ్రాడ్, సిల్వర్ ఫ్రాడ్ అని చెప్పి రకరకాల చేయడం జరుగుతుంది. సో కంప్లైంట్ ఈ ఒక ఫ్రాడ్ అయిన తర్వాత ఇన్ కంప్లీట్ షాక్. సో అనుకోకుండా తెలియకుండా ఎవరు ఈ ఒక సైబర్ క్రైమ్ లో మనము విక్టిమ్ అయిపోతే వాళ్ళు ఇమీడియట్లీ ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని 1930కి ఫోన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ది గోల్డెన్ మంత్ర. మీరు అందరు కూడా అటెంప్ట్ అయినా ప్లీజ్ కాల్ 1930. మీ యొక్క డీటెయిల్స్ ని cybercrime.gov.in లో మీరందరూ కూడా మీ ఎన్సీఆర్టీపీ పోర్టల్లో మీ డీటెయిల్స్ ని ఎంట్రీ చేయాలి. అది కాకుండా గోల్డెన్ అవర్ లో చేయాలి. మనం ఎట్లా మనము కార్డియక్ అరెస్ట్ అయిన తర్వాత, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అయిన తర్వాత ఎట్లా మనం గోల్డెన్ అవర్ అంటాను, దీంట్లో కూడా ఒక గోల్డెన్ అవర్ అనేది ఉంటుంది. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు ప్లీజ్ యూజ్ గోల్డెన్ అవర్ సో దట్ మనము అకౌంట్ ని ఫ్రీజ్ చేయవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ నేరస్తులంతా క్షణంలో అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది. ఎక్కడెక్కడో మ్యూల్ అకౌంట్స్ ఉంటావు, ఎక్కడ ఉంటుంది, ఒక్కటి లేదు 2-3 లేయర్స్ లో అమౌంట్ వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. సో అది ఆపాలంటే మీరు గోల్డెన్ అవర్ ని వాడుకోవాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. ఇది 1930 ఇస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పోర్టల్. సో అది అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ విక్టిమ్ ఆయనకి ఎక్కడ పోవడానికి తెలియదు, దగ్గరున్న పోలీస్ స్టేషన్ ఎక్కడని తెలియదు. చాలా మంది కూడా ఇల్లిటరేట్ ఉన్నారు, ప్లస్ పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, రిటైర్డ్ పీపుల్ ఉన్నారు, 80 years అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు, యూత్ ఉన్నారు, ఉమెన్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళకి ఎక్కడ ఏం చేయాలనేది తెలియదు. వాళ్ళు చాలా ఒక భయభ్రాంతానికి గురి అయి ఉంటారు. సో హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ కమిషనరేట్ ఈ ఒక వర్చువల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ అనే ఒక సిస్టమ్ ని తీసుకురావడం జరిగింది. हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार ने शहरियों खास तौर पर संक्रांति के सफर के बढ़ते हुए रश के दौरान गहरी धुंध में गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत दी है। और क्योंकि शहर और इसके गिर्द व नवाह में धुंध की वजह से हद नज़र बहुत कम हो गई है, जिससे सड़क हादसात का खतरा बढ़ता जाता है। और उन्होंने कहा कि जल्दी पहुंचने की ख्वाहिश में अपनी और दूसरों की जिंदगी को खतरे में ना डालें और अगर ज़रूरी हो तो धुंध कम होने के बाद ही सफ़र शुरू करें। गाड़ी की रफ्तार कम रखें, फोग लाइट्स और इंडिकेटर्स का मुनासिब इस्तेमाल करें और महफूज फासला बरकरार रखें ताकि हर फर्द अपने घर वालों तक महफूज तौर पर पहुंच सके। हैदराबाद के मलकपेट ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की जानिब से चीनी मांझे के खिलाफ एक मौसर अवामी बेदारी मुहिम चलाई गई, जिसके दौरान सब इंस्पेक्टर के रामू ने एक बच्चे के सामने खीरा काटकर चीनी मांझे की खतरनाक तेज धार होने का अमली मुजाहरा किया। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ये ममनुआ मांझा किसी इंसान की गर्दन या जिस्म के हसास हिस्से से टकरा जाए तो शदीद जख्म बल्कि जानलेवा हादसा भी साबित हो सकता है। जैसा कि माजी में कई वाकयात सामने आ चुके हैं, सब इंस्पेक्टर ने वादे किया कि चीनी या नायलॉन मांझे का इस्तेमाल, फरोख्त या रखना कानूनन काबिल सजा जुर्म है और अवाम से अपील की है कि वो त्योहारों और पतंगबाजी के दौरान अपनी और दूसरों की सलामती के पेश नज़र सिर्फ सूती धागे का इस्तेमाल करें और ख़तरनाक चीनी मांझे से मुकम्मल इज्तनाब बरतें। మరి కట్ అవుతుంది. అదేంటి మెడకాయ కలిగితే ఎక్కడవుతుందో తెలుసా? మెడకాయ కలిగితే మెడకాయ అనుకో ఇట్లా వేయండి, మెడకాయ అట్లా దిగిపోతుంది. అర్థమైందా? ఏమవుతుంది? ఈ కట్ కాకుండా ఏళ్ళకాయ చుట్టుకున్నావు, అదే మెడకాయ కట్ అయితే కట్ అవుతుంది. ఇది ఎందుకు దానంతో ఎగరదా పక్కన పైకి? ఎందుకు వాడడం ఏమొచ్చింది? వాడద్దు ఇది.
మంచిగా మానవులైనా కార్డులతో వేసుకోవాలి పైకి. అది చూసిన ఎట్లా కట్ అవుతుంది చూసిన మెడకాయ కూడా అంతేనే స్పీడ్గా పోతారు బైక్ వేసుకొని చచ్చిపోతున్నారు. जीएचएमसी की जानिब से शहर में बड़े पैमाने पर ई वेस्ट सफाई मुहिम का आगाज किया जाने वाला है। ये मुहिम 12 और 13 जनवरी को चलाई जाएगी और इसके लिए अवाम में शौर बेदार करने ऐलानात का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जीएचएमसी की जानिब से मज़ाफ़ाती इलाकों, कापरा सर्कल और शहर के दिगर तमाम हलकों और वार्ड्स में इस तरह के ऐलानात किए जा रहे हैं। इन ऐलानात के जरिए अवाम को मुताले किया जा रहा है कि जीएचएमसी की जानिब से ये मुहिम शुरू की जा रही है ताकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को महफूज तरीके से तलब किया जा सके। कहा गया है कि ज़िले ज़ाया और नाकारा इलेक्ट्रॉनिक अशिया जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, चार्जर, यूपीएस, इन्वर्टर और दिगर इलेक्ट्रॉनिक आलात जो नाकारा हो चुके हैं, इन्हें इस मुहिम के दौरान जीएचएमसी अमले के हवाले किया जा सकता है ताकि इन्हें महफूज तरीके से ज़ाया किया जा सके। जीएचएमसी से गुज़िश्ता दिनों शहर में कचरे की सफाई के लिए खुसूसी मुहिम चलाई गई थी और अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को ज़ाया करने की मुहिम शुरू की जा रही है। జీహెచ్ఎంసీ వారి ముఖ్య గమనిక అన్ని కాలనీ మరియు వార్డు నివాసులకు తెలియజేయనది ఏమనగా జనవరి 12 మరియు 13, 2026 తేదీల్లో గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో భారీ ఈ వేస్ట్ సేకరణ డ్రైవ్ నిర్వహిస్తున్నాం. మీ ఇంట్లో ఉన్న పాత ఫ్రిడ్జ్లు, టీవీలు, వాషింగ్ మిషన్లు, కంప్యూటర్లు, ల్యాప్టాప్లు, మొబైల్ ఫోన్లు, చార్జర్లు, బ్యాటరీలు మరియు ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను చెత్తలో వేయకండి. ప్రతి కాలనీ సమీపంలో ఈ వేస్ట్ సేకరణ కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశాము. కావున ప్రజలు సులభంగా వచ్చి తమ ఈ వేస్టును జీహెచ్ఎంసీ సిబ్బందికి అప్పగించవచ్చు. డంప్ చేయవద్దు, అప్పగించండి. ఈ వేస్టును శాస్త్రీయంగా నిర్వహణ చేసి మన పర్యావరణాన్ని కాపాడుదాం. हाइड्रा की जानिब से नौजवानों को आफत समावी और मुश्किल वक्त में अवाम की मदद के लिए तैयार करने के प्रोग्राम युवा आपदा मित्रा प्रोग्राम का एक मरहला कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया गया है। युवा आपदा मित्रा की ट्रेनिंग नौजवान वॉलंटियर्स के एक ग्रुप ने मुकम्मल कर ली है और इन्हें एक तकरीब में सर्टिफिकेट्स भी हवाले किए गए हैं। ये असनादात कमिश्नर हाइड्रा एवी रंगनाथ के हाथों जारी किए गए। कमिश्नर हाइड्रा ने कहा कि इस प्रोग्राम की बहुत अहमियत है चूँकि नौजवानों को मुश्किल वक्त में मदद के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को गाँव की सतह से रियासत की सतह तक तोसी देने का मंसूबा है ताकि किसी भी मुश्किल के वक्त में सूरत हाल से निपटने और जान बचाने की कोशिशों को मुस्तहकम किया जा सकता है। कमिश्नर हाइड्रा ने कहा कि नौजवानों को मुश्किल और बहरान के वक्त में समाज की मदद के लिए आगे आने की ज़रूरत है और इसीलिए हाइड्रा की जानिब से नौजवानों को ट्रेनिंग देने का ये प्रोग्राम शुरू किया गया था और इसका एक मरहला कामयाबी से पूरा कर लिया गया है। सदाशिवपेट के इलाके सदापुर में आज कांग्रेस पार्टी के टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट जगा रेड्डी ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि साल 2013 में सदाशिवपेट के 5300 मुस्तहिक अफराद को पट्टा पासबुक फराहम की गई थी। ताहम 2014 में टीआरएस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद प्लॉट्स का काम रुक गया और ये मंसूबा ज़ेरे इल्तिबा का शिकार हो गया जिसके बायस अवाम को अपने हुकूक हासिल ना हो सके। उन्होंने कहा कि अब चूँकि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत है इसलिए साबिक़ा वादों को पूरा करते हुए मुतासरा मुस्तहिकीन को आइंदा 12 माह के अंदर फ्लैट्स फराहम करने का पुख्ता वादा किया जा रहा है ताकि अवाम को इंसाफ मिल सके और देरीना मसाइल हल हों। రైతులకు డబ్బులు ఇచ్చి వాళ్ళకు ప్లాట్లు ఇచ్చి వాళ్ళతో దగ్గర భూమి కొని మీకు ఇళ్ల జాగల కోసం ఒక్కొక్కరికి 80 గజాల చొప్పున ఇళ్ల స్థలాల సర్టిఫికెట్లు నేను ఇవ్వడం జరిగింది. ఇదే భూమిగా 5300 మందికి ఇచ్చిన. 2014 సంవత్సరంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రాల్లో 2 రాష్ట్రాలు అయిపోయినాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒకటైంది, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఒకటైంది. 2014లో ఈ రాష్ట్రానికి ప్రజలు కేసీఆర్ గారిని ముఖ్యమంత్రిని చేశారు. సంగారెడ్డి నియోజకవర్గం కూడా అప్పుడు ఇక్కడ 2014లో ఇక్కడ నుంచి అప్పుడు టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేని గెలిపించారు. 2014 నుంచి నేను ఫీల్డ్ లేను, ఎమ్మెల్యేగా లేను,
అధికారం కాంగ్రెస్ లేదు, అధికారం కాంగ్రెస్ కూడా లేదు. ఈ అధికారం కాంగ్రెస్ గా లేదు రాష్ట్రంలో. నేను ఎమ్మెల్యేగా లేను, నాకు పవర్ లేదు, నేనేం చేయలేని పరిస్థితిలో మీకు ఆ రోజు ఇదే భూమిలో రాళ్ళు కూడా వాతిపించారు. మీరు ఎందుకు మీరు ఈ జాగలకు రాలేరు, మీరు కబ్జాలో కూర్చోలేరు. నేను 1కి 10 సార్లు చెప్పిన, సర్టిఫికెట్లు ఇస్తున్నా, రాళ్ళ నంబర్లు వేసిన, కబ్జాలో కూర్చుంటే పదే చెప్పిన. అయినా మీరు ఆ రోజు ఇలా కబ్జాలకు రాలేదు, ఈ నంబర్లు వేసిందని మీరు వచ్చి గుడిసెలు వేసుకోలేదు, ఇల్లు కట్టుకోలేదు. ఒకటి, అప్పుడున్న అధికారం టిఆర్ఎస్ ఉంది, ఇక్కడ టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు, రాష్ట్రంలో టిఆర్ఎస్ ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు. సరే, దాని తర్వాత ఏమైంది? మీరు ఎవరో కొందరు ఈ జాగ మీదకి వస్తే అప్పుడున్న టిఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ మిమ్మల్ని ఇక్కడ నుంచి పోలీసు వాళ్ళని పెట్టి ఎలగొట్టారు. నాకు అప్పుడు ఎవరు చెప్పారు? సిద్ధాపూర్ విష్ణు వచ్చిండు, అరుణ్ వచ్చిండు, అరుణ్ చిరువల్ అన్న అరుణ్ వచ్చిండు, వీళ్ళందరూ వచ్చిండు, అదే సత్తాన్ని వచ్చిండు, వీళ్ళందరూ వచ్చిండు. నేనేమంటున్నంటే ఆ రోజు నేనన్నా, ఇప్పుడు నేను అధికారం ఎమ్మెల్యేగా లేను, మన కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ లేదు, మరి అక్కడనేమో అప్పుడెవరు మినిస్టర్ ఎవరు? హరీష్ రావు ఉండే. మీరు ఇక నాకు పవర్ లేనప్పుడు నాతో అయిన పని నేను చేసి పెట్టాను మీకు. ఇక కబ్జాలో మీరు రాకపోవడం మీ తప్పు. आदिलाबाद जिले पुलिस ने नौकरियों के नाम पर बेरोजगार नौजवानों से लाखों रुपए बटोरने वाले एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए मरकजी मुलजिम 45 साल चिट्टा बोइन मधु किरण को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में कुल 5 अफराद के खिलाफ 1 टाउन पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिनमें से 3 गिरफ्तार होकर अदालत रिमांड पर भेज दिए गए, जबकि 2 मुलजिमा खवातीन ताहाल मफरूर है। जिले एसपी अखिल महाजन IPS ने बताया कि मुलजिमीन ने जाली NGO और सरकारी स्कीमों का हवाला देकर मुख्तलिफ अजला में तकरीबन 240 नौजवानों को धोखा दिया है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से जाली तकर्रुरी अहकामात और मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं। SP ने अवाम से अपील की है कि वो नौकरियों के नाम पर रकम मांगने वालों से होशियार रहें, क्योंकि सरकारी मुलाजिमतें पैसों से नहीं बल्कि अहलियत और इम्तिहानात के जरिए हासिल होती हैं। बस्ट किया इस जॉब फ्रॉड रैकेट में लगभग 300 से 350 विक्टिम हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। ये विक्टिम्स आदिलाबाद के, आसिफाबाद के, मंचिरियाल के, निर्मल के, महबूबाबाद के, खम्मम के, जनगांव के, हनुमान कोंडा के आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। लगभग 300 से 350 विक्टिम में एक आदमी से 1 लाख से 2 लाख रुपए लगभग वसूल किया गया है। इन सबको कि आपको नौकरी प्रोवाइड की जाएगी, आपको स्कूल में टीचर की जॉब प्रोवाइड की जाएगी, उस तरह से इनसे पैसे वसूल किए, या तो स्वीपर की जॉब आपको स्कूल में प्रोवाइड की जाएगी। कुछ लोगों को सर्टिफिकेट दे के उनको स्कूल में 3 महीने उनसे काम भी करवाया गया, जब सैलरी नहीं आई तो मालूम चला कि एक फ्रॉड है। तो इसमें इसका एमओ क्या है? ये एक ऑनलाइन ऐसा एक लेटर प्रिपेयर करता है। लेटर में विद्यांजलि 2.0 अनंत सॉल्यूशंस के नाम पे एक लेटर प्रिपेयर करके कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया, ऐसे करके लेटर प्रिपेयर करके ये DO को या प्रिंसिपल को जाके मिलके ये मेरे को ऑथराइजेशन है, ये मैं 3 लोग आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इनसे काम करवाइए। तो वो लोकल स्कूल वाले भी, क्योंकि उनको कभी कभी ज़रूरत रहती है टीचर्स की या किसी काम की, तो वो लोग भी रख लेते हैं। तो उसकी वजह से ये फ्रॉड इसीलिए 3-4 महीने लग गए इसको बाहर आने में। तो अब पहले भी इनके ऊपर लगभग 12 से 15 केसेस रजिस्टर हुए हैं। अभी भी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमने इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो जो भी विक्टिम्स दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स में या हमारे आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में या ओल्ड आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के हैं, तुरंत अपने पुलिस स्टेशन में जाके फरियाद दे के केस को रजिस्टर करिए, सो दैट इसके ऊपर हम और सख्त एक्शन लेके PD एक्ट भी इनके ऊपर अमल कर सकेंगे। इसमें जो मेन एक्यूज है उसका नाम मधु किरण है, वो अलवल का रहने वाला है, और इसको हमने कल ही बोर्डउपल एरिया से पकड़ा है। इसका एक साथी सुधाकर है, एक सतीश है, एक जो सतीश है वो गोदावरी खनी का आदमी है, वो पहले भी मंचिरियाल में जेल जा चुका है। उसके अलावा जो 2 लोग बच गए हैं, लावण्या और सुजाता ठाकुर, वो लोग भी अभी उपल और उसी एरिया में हैं, उनको भी तुरंत पकड़ के हम लोग केस का अंजाम खत्म करेंगे। कौमी रोड सेफ्टी माह के मौके पर हफ्ते के रोज आदिलाबाद जिले मुस्तखर के कलेक्टर चौक पर महकमा ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस के इश्तिराक से एक मुनफरिद बेदारी प्रोग्राम मुनाकाद किया गया, जिसमें ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने वाले शहरियों की हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर हेलमेट पहनने वाले मोटरसाइकिल सवारों और सीट बेल्ट बांधने वाले कार ड्राइवरों को मुंतखब करके स्कूली तलबा के हाथों फूल पेश किए गए।
جس سے ڈرائیوروں اور عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے عادل آباد ٹریفک سرکل انسپکٹر پرنے کمار اور اسسٹنٹ موٹر وہیکل انسپکٹر ہریندر کمار نے کہا کہ ٹریفک قوانین کی پابندی دراصل اپنی اور دوسروں کی جان کی حفاظت ہے، اور انہوں نے تمام گاڑی چلانے والوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ کے استعمال کو مستقل عادت بنا لیں۔ شہریوں نے اس مثبت اور قابل تقلید اقدام پر محکمہ ٹرانسپورٹ اور ٹریفک پولیس کی ستائش کی، جبکہ اس موقع پر ٹی رنجیت کمار، ٹریفک سب انسپکٹر دیویندر مہندر اور دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ حرم کنڈہ ورنگل کے علاقے صوبیداری میں واقع مسجد خرد چھوٹی مسجد میں محمد عبدالجلیل خان اور نوجوانان محلہ کے زیر اہتمام بزم پابندی نماز فجر کی جانب سے اہل محلہ کے طلبہ کے لیے بعد نماز مغرب جلسہ تقسیم انعامات منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی مولانا مفتی عمر عابدین قاسمی مدنی نے طلبہ کو نماز فجر کی پابندی کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور بعد نماز میڈیا سے خطاب بھی کیا، جبکہ نماز فجر کے پابند 10 طلبہ کو دیگر بچوں کے حوالے حوصلہ افزائی کے لیے برانڈ نیو سائیکلز بطور انعام پیش کی گئی۔ پروگرام کی صدارت مولانا فصیح الدین قاسمی نے کی، نگرانی مقصود احمد خان و حسن الدین نے انجام دی، جبکہ مہمانان نے مختصر مگر مؤثر خطاب میں طلبہ کو وقت کی پابندی، اچھے اخلاق، تعلیم کے ساتھ دینی وابستگی اور مستقل مزاجی اپنانے کی تلقین کی۔ تلنگانہ کے معروف ضلع ورنگل میں مسجد خرد کے تحت آج ایک بہت اہم پروگرام منعقد کیا گیا۔ پروگرام میں دراصل کم عمر بچوں کو نماز کا پابند بنانے کے لیے ایک مسابقہ رکھا گیا، ایک کمپٹیشن رکھا گیا، جس میں اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں جن بچوں نے پابندی کے ساتھ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ان کو انعام دیا گیا۔ اور آج کا اجلاس حضرت مولانا فصیح الدین قاسمی صاحب کی صدارت میں منعقد ہوا۔ محترم جناب عبدالجلیل خان صاحب نے اس کی ذمہ داریاں ادا کی۔ اس اجلاس کی خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ گرد و پیش کے 10 بچوں کو ایک برانڈڈ سائیکل گفٹ میں دی گئی، اس بنیاد پر کہ نماز فجر میں 2 ماہ یعنی کم و بیش 61 دن وہ لوگ پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ شریک رہے، اور اس کے بعد یہ دسمبر کے مہینے میں بھی وہ بچے کنٹینیو رہے اور اب جنوری میں بھی وہ نماز کے پابند ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مسجد نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو، نسل نو کو ترغیب دے کر کس طرح مسجد سے جوڑا جائے، اور یہ ایک مثال بنا دی گئی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ورنگل، تلنگانہ اور ملک کے مختلف حصوں میں لوگ اس کی پیروی کریں گے اور بچوں کو مسجد سے راغب کرنے کے لیے اس طرح کے انعامات اور حوصلہ افزائی کا طریقہ اختیار کریں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے، مساجد ہمارے پورے مسلم سماج کا سب سے مرکزی حصہ ہے۔ اگر ہم مسجد سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں تو پورے دین سے اور سماج سے ہم اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں، تو یہ کوشش بہت قابل مبارکباد ہے۔ میں محترم جناب عبدالجلیل خان صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، ورنگل کے مسلمانوں کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور نیک تمنائیں پیش کرتا ہوں، اور امید رکھتا ہوں کہ ان کے بتلائے ہوئے اس راہ پر دوسرے لوگ بھی انشاءاللہ چلیں گے۔ اختتام سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ سرکاری دستاویزات درست رکھیں، SIR کے لیے کریں پیشگی تیاری۔ شاہی مسجد باغ عامہ کے امام و خطیب مولانا احسن الحمومی کی عوام سے اپیل، کہا SIR عمل میں غفلت کے سنگین نتائج۔ یونیورسٹی کی 50 ایکڑ اراضی پر قبضے کے خلاف مانو کے طلبہ کے احتجاج کو ملا عثمانیہ یونیورسٹی طلبہ کا ساتھ۔ وزیر اظہر الدین نے کہا، یونیورسٹی کی اراضی واپس لینے کا کوئی ارادہ نہیں۔ تلنگانہ میں نئی گاڑیوں کے رجسٹریشن کے لیے سہولت، اب RTA دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ڈیلرز کے ذریعے ہو جائے گا رجسٹریشن کا عمل مکمل۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں 23ویں انڈیا کانفرنس ماہ فروری میں انعقاد، سابق ریاستی وزیر و BRS لیڈر KT راما راؤ کو خطاب کی دعوت۔ سٹی پولیس کی عوام کے لیے نئی پہل،
साइबर धोखे की शिकायत घर बैठे दर्ज करवा सकते हैं। सी मित्रा प्लेटफॉर्म का कमिश्नर पुलिस ने किया आगाज। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करें। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।